Hello, my dear students. Today we are going to discuss inelastic collision in one dimension. या perfectly inelastic collision in one dimension. इसमें कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के बारे में सीखेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस जैसे एक एससीबी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक जेई मेंस का। और हाँ, मैंने आपको एक क्वेश्चन जेई मेंस 2010 का होमवर्क दे रखा है, तो आप इसका मेरे को आंसर बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। परफेक्टली inelastic collision. In 1D. क्लियर? जैसे अभी डेफिनेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, पहले कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज द मास m1 एंड दिस इज द अनदर मास m2. ओके, this is moving with velocity u1 and this is moving with velocity u2 या मे बी एट रेस्ट ऑल्सो। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दिस स्टोरी इज बिफोर कोलिजन, देन they both are going to collide. This story is during collision. Okay, and after collision what happened? This is perfectly inelastic collision, means the coefficient of restitution will be 0. अगर आपको नहीं पता है coefficient of restitution क्या होता है, तो आप जाके कोलिजन का पहला लेक्चर देख सकते हैं, वहां पे आपको पता चल जाएगा। हाँ, अब क्या हुआ, पहले दोनों अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे थे, u1 इज ग्रेटर देन u2, तभी तो कोलिजन होगा। उसके बाद क्या हुआ, दोनों स्टिक कर गए, दोनों चिपक गए, कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करने लगे। दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज नोन एज perfectly inelastic collision, and of course particles are moving in only x direction, maybe in y also. So we can say the perfectly inelastic collision in 1D. What it means, when two objects or two bodies are moving in same line and collide each other, comma, after collision they both stick and starts moving with a common velocity, and this type of collision is known as perfectly inelastic collision, and the value of coefficient of the restitution will be 0 here. That's why they both are collide. मैं थोड़ा सा बता देता हूं, coefficient of restitution is velocity of separation over velocity of approach, and this is 0. It means this function is 0. It means b1 b2 is equal to b1. इनको मैंने relative velocity भी बताया था, but at the time both have the equal velocity u1 and u2. It means there is the no relative velocity. Okay, अभी थिंक आउट करना शुरू करते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कोलिजन का लेक्चर फर्स्ट में स्टार्ट करने से पहले, मैंने बताया कोई भी कोलिजन हो, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, मोमेंटम सब में क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। क्यों? सिस्टम के ऊपर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे कोलिजन होगा तो ऑफकोर्स इंटरनल फोर्सेस होंगे, नॉर्मल रिएक्शन, और आपको पता है इंटरनल फोर्सेस से मोमेंटम पे कोई भी असर नहीं होता है या उसके पाथ में कोई भी चेंज नहीं होता है। दैट्स व्हाई इंटरनल फोर्सेस आर नॉट कंट्रीब्यूटेड इन चेंज इन मोमेंटम, एंड देयर इज द नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, एज वी कैन से CMC, combined momentum conservation. The momentum before collision will be equal to the momentum after collision, and there is a necessary thing, what, particles are moving in one dimension, so there is no need of to use the concept of CMC along x or y. It means particle has velocity in 1D, so we are going to conserve the momentum in only single direction.
इन प्रीवियस लेक्चर व्हेन इलास्टिक कोलिजन इन 2D, तो अपन क्या करते थे, दो डायरेक्शंस के अलोंग मोमेंटम कंजर्व करते थे, इधर एक्स और वाई के अलोंग, या तो एक्स के अलोंग भी करते थे, वाई के अलोंग भी, ज्यादातर हमारे क्वेश्चंस एक्स वाई में होते थे, लेकिन यहां पर एक लाइन में मूव कर रहे हैं तो सिंपली मोमेंटम कंजर्वेशन इन ओनली वन डायमेंशन, या एक्स के अलोंग मूव कर रहे हैं तो एक्स के अलोंग। बोलो, यहां पर मैं लिख सकता हूं द मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ दिस पार्टिकल इज गोइंग टू बी m1u1 plus momentum of this particle before collision is going to be m2u2, and after collision what happened, they both are stick together and start moving with a common velocity, and that is b. Is that clear? Okay, so the final momentum will be also equal to the initial momentum, so I can say mass of both momentum of this object, now this is the system which has mass m1 plus m2 and moving with a velocity v, so we can say mass and multiple product of the velocity is called momentum. So this equation represents the momentum conservation. Is that clear? बोलो, मैंने आपको एक बात और बताई थी, मैंने कहा था इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वी कैन से एनर्जी विल बी कंजर्व, बट इन केस ऑफ इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग द कोलिजन कुछ एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा, लॉस कह दो या कन्वर्सेशन कह दो, कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, कुछ साउंड के अंदर, कुछ लाइट के अंदर, कुछ हीट के अंदर, ऐसी चीजें होती है किसके अंदर, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर। इट मींस वी कैन से कि एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज नहीं कर सकते, इट कैन बी ओनली यूज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इट मींस आई कैन से कि एनर्जी का क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, एंड ऑफ कोर्स वी आर डीलिंग एट द रेफरेंस लाइन। इट मींस the concept of the potential energy or gravitational potential energy is going to be zero, so there is the only concept of kinetic energy. It means loss of kinetic energy, so we can write another equation for loss in kinetic energy. So first of all we are going to write the kinetic energy just before collision and after collision. So I am going to write initial kinetic energy. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या होगी, दिस की फॉर दिस पार्टिकल इज गोइंग टू बी हाफ m1u1 स्क्वायर, फॉर दिस पार्टिकल इज गोइंग टू बी इनिशियल, तो दोनों का ऐड करके एक ही बार में लिख देता हूं, प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। बोलो, दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, मेंशन कर देता हूं, दिस इज बिफोर कोलिजन। अगर मैं आपसे पूछूं what will be the kinetic energy after the collision, then you can say kinetic energy final is very simple, what, half mass summation of both masses m1 plus m2 and square of the speed v square। बोलो, अगर मैं आपसे पूछूं काइनेटिक एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस, इसका मतलब चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो सिंपली मैं आपसे बोल सकता हूं कि पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, बाद में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट मींस अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो जो चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी का वो नेगेटिव आएगा। दैट्स व्हाई मैं काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैसा ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, इनिशियल माइनस फाइनल। इससे क्या फायदा होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी पहले ज्यादा थी और बाद में काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो ये डिफरेंस करने के बाद जो वैल्यू ओवरऑल आएगी दैट विल बी पॉजिटिव वैल्यू। इज दैट क्लियर? अगर फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो मैं इसके लिए एक नया इक्वेशन तैयार कर देता हूं और उसी दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बोलो, सो आई कैन से द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यू कैन ऑल्सो से दिस चेंज इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज और ए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज गोइंग टू बी सिंपली हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 square. This is the initial kinetic energy minus the final kinetic energy is going to be half m1 plus m2 into v square. Is that clear? दो इक्वेशंस मिल गई,
by the help of momentum conservation this equation and by the help of energy conservation by the help of चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें ये इक्वेशन मिल गई। एनर्जी यहाँ पर कंजर्व रहने वाली नहीं है, इन इलास्टिक कोलिजन जैसी चीजें हो रही हैं। बोलो क्या सर मेरे को याद करने की जरूरत नहीं? आपको इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं तो ये इन इक्वेशंस का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते हमारे दिमाग में एक बात रहनी चाहिए, ये हम भूल ना जाए, बार बार ये प्रैक्टिस होती है ना हमें कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, तो दिस शुड बी इन योर माइंड कि मोमेंटम कंजर्वेशन तो एप्लीकेबल फॉर द ऑल टाइप ऑफ कोलिजन, बट kinetic energy conservation or energy conservation is only applicable for the elastic type of collision, elastic or perfectly elastic. But in case of inelastic collision, there will be a loss of energy in the terms of sound, heat and light etc. Is that clear? तो अभी अपन क्या करते, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब एक पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 2-3 सवाल ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं SCB से ले रहा हूं, SC वर्मा सर की बुक से। तो मैं पॉज करके क्वेश्चन को लिख देता हूं ताकि आप उसकी लैंग्वेज को इजीली समझ पाए। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम SC वर्मा। क्वेश्चन इज सेइंग दो कार्ड्स है कोई जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। एक कोई कार्ड 50 kg का है, दूसरा कोई कार्ड 20 kg का है एंड बोथ आर मूविंग विथ 20 km/h एंड 10 km/h एट बोल रहा आगे था कार्ड्स आर सेलिंग टू ईच अदर या फेसिंग टू ईच अदर, फाइंड द स्पीड ऑफ द कंबाइंड मास आफ्टर द कोलिजन। तो मैं आपको यहां पर इसका एक रफ डायग्राम बना के बताता हूं। मैं आपको बहुत बार बोलता हूं, अगर आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़नी है, समझनी है या इसके तर्क को समझना है तो आप ट्राई किया करिए एक रफ डायग्राम का। रफ डायग्राम से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। चलो बनाने की कोशिश करते। यहां पर मैंने एक कार्ड को बनाया है। लेट्स से दिस कार्ड has velocity that is u1 and which is 20 km/h. Yes, this is heavier cart. Let's say this is the cart A and mass of the cart is 50 kg. And there is the another cart. There is the another cart which is moving towards the cart A. Let's say this is the B cart and this has velocity 10 km/h. And the mass of this cart is 20 kg. Is that clear? अभी क्या हुआ, ये दोनों कोलाइड करे और कोलिजन के बाद जनरली क्या होगा, देखो ये भारी भी है और तेज भी चल रहा है, तो दोनों अगर स्टिक कर भी जाएंगे तो अपन मान लेते हैं कि आफ्टर द कोलिजन क्या हुआ, दोनों स्टिक कर गए और कार्ट ए कार्ट बी एंड स्टार्ट मूविंग विद अ कॉमन वेलोसिटी एंड विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? मेरे से ये पूछा गया है कि कितनी वेलोसिटी होगी इन दोनों कार्ड्स की जब ये कंबाइन कर जाते हैं। बोलो। तो बहुत ही इजी है, यहां पर एनर्जी के कॉन्सेप्ट का कोई यूज करना नहीं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लॉस वगैरह हमें बताना नहीं है, सिर्फ क्या करना है इसकी वेलोसिटी बतानी है। वी कैन यूज द मोमेंटम कंजर्वेशन क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं, सो वी कैन से मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एंड वेरी इजी टू राइट। बोलो ऐसा करते, इन सबको km/h में लिख लेते, बाद में अगर चेंज करना होगा तो आंसर में डायरेक्ट चेंज कर देंगे। क्लियर? तो यहां से बोलो इनिशियल कोलिजन इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस कार्ट इज गोइंग टू बी मास एंड वेलोसिटी एंड चलो एक बार लिख दे रहा हूं MAVA प्लस MBBB इज इक्वल टू MA प्लस MB इंटू कॉमन वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? तो MA मास ऑफ द कार्ट A is 50 and the velocity of the cart A is 20। ध्यान रखेंगे कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन कन्वेंशन का भी अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। हाँ, हम बार बार कंसीडर करते हैं कि पॉजिटिव एक्स की चीजों को या पॉजिटिव एक्स की चीजों को पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, तो ये प्लस एक्स में चल रहा है, 10 मैंने प्लस कंसीडर कर लिया एंड दिस कार्ट इज मूविंग इन द नेगेटिव एक्स, सो आई एम गोइंग टू कंसीडर नेगेटिव। और यू कैन से लाइक दिस, यू कैन ऑल्सो से the mass is 20 and the velocity is -10। ओके, एक ही बात है, मैं यहां लगा देता, यहां लगा देता। एंड मास ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, दिस हैज 50, दिस हैज 20 and the total mass is 70 and velocity is v। इज दैट क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर बनाएंगे। तो यहां से ये कितना हो गया 20, ये इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। पहले तो एक जीरो कम कर लेते हैं सबके अंदर से, यहां से एक जीरो गया,
यहां से भी एक 0 गया और यहां से भी। अब ये प्लीज ये मत पूछना ये कैसे गया, ये कॉमन होने के बाद गया। ओके, तो ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया -20 इज इक्वल टू 7b। बोलो ये कितना बचा 80/7। तो यहां पर मैं आपको बता सकता हूं the answer is 80/7 and of course kilometer per hour. If you want to convert this into meter per second then you can multiply by 5/18 meter per second. ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना और कैलकुलेशन करने के बाद आंसर लिख लेना। एक सेकेंड, क्लियर है? ये क्वेश्चन हम लोगों ने एससीबी से लिया था और इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसका पहाड़ा वहाड़ा पढ़ के काट लेंगे। क्लियर? तो समझ गए कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से करेंगे। अब मैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेने जा रहा हूं और ये जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। वैसे इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग मोशन एंड 1D में भी सॉल्व कर चुके हैं, बट वहां पर हमने कोलिजन के कॉन्सेप्ट का यूज नहीं किया था, बस ये पूछा था कब टकराएंगे। मैं क्वेश्चन को नोट करता हूं फिर समझते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ओके, this is the next question and very interesting question and this was asked in the JEE Mains 2017, JEE Mains 2017 में पूछा गया। मेरे से बोल रहा है आप क्वेश्चन को पढ़ो, पॉज करो और फिर ट्राई करो, देन हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व होगा। मैं पढ़ के बताता हूं। A piece of wood of mass 0.3 kg is dropped from the top of a building of height 100 meter। 100 मीटर हाइट से कोई एक लकड़ी का या कोई ब्लॉक है जो नीचे की तरफ गिराया जा रहा है। एट द सेम टाइम द बुलेट इज फायर्ड ऑफ मास 0.02 kg वर्टिकल अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। नीचे से उसी समय एक बुलेट को फायर किया गया विथ द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। आगे बोल रहा है द बुलेट गेट एम्बेडेड इन टू वुड। लकड़ी के गुटके में बुलेट धस गई। उसका बाद पूछ रहा था मैक्सिमम हाइट टू विच कंबाइंड सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम कहां तक पहुंचेगा? अबव द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, उस 100 मीटर की बिल्डिंग के ऊपर, बिफोर फॉलिंग बिलो। आपको पता है जैसे बुलेट वुड के अंदर एम्बेडेड होगी तो ऊपर जाएंगे, फिर कहीं पे जाके वेलोसिटी 0 होगी, देन फिर गिरेंगे। तो उस गिरने से पहले या वेलोसिटी 0 होने से पहले की कहानी के बारे में हमें डिस्कस करना है। एंड द 4 ऑप्शन 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर एंड 40 मीटर, जेईई मेंस 2017। आप पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो एंड ट्राई करो। 1 2 3 कर लिया नोट, कर लिया ट्राई। चलो अब समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को हमने बंडी में भी सॉल्व किया है, लेकिन वो कहानी सिर्फ कोलिजन तक ही सीमित रहती थी। कोलिजन के बाद कुछ नहीं होता था क्योंकि हमें कोलिजन की उस समय नॉलेज नहीं थी, बट एट द टाइम वी नो अबाउट द कोलिजन। तो कोलिजन के बारे में डिस्कस करते। मैंने यहां से एक बिल्डिंग बना ली है। लेट्स से ये बिल्डिंग कोई 100 मीटर हाइट की है और यहां से अपन एक वुडन ब्लॉक को फॉल करा देते हैं नीचे की तरफ। मास वगैरह आपके पास सब लिखे हुए, नो प्रॉब्लम। बोलो क्वेश्चन इज कि ये ग्राउंड लेवल अपन ने ले रखा है और यहां से एक बुलेट फायर किया जाता है विथ द इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड एंड ऑफ कोर्स ग्रेविटी इज डाउनवर्ड, मोटा मोटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं इसको कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। ओके, अभी क्वेश्चन है कि जब ये तो नीचे गिरेगा, बोलो आफ्टर द टाइम ये नीचे गिरेगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं टकराए होंगे। मान लेता हूं यहां पर ये दोनों एम्बेड कर गए, धस गए। उसके बाद इनकी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी ऊपर जाने की। तो मैंने मान लिया ये कंबाइंड सिस्टम बुलेट का और ब्लॉक का यहां कहीं तक गया है। अब इनमें जो जो चीजें पता है वो रख लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने माना कि ये ब्लॉक x नीचे आया, x डिस्टेंस नीचे आया, कुछ टाइम लगा होगा उस टाइम में, जस्ट कोलिजन, जहां पे कोलिजन हुआ है, जस्ट बिफोर कोलिजन भी आप बोल सकते हो। तो बोलो ये भी ऊपर गया होगा। तो अगर ये x ऊपर नीचे आया है तो ये 100 माइनस x ऊपर गया होगा। अरे भैया सेम टाइम में यही तो स्टोरी होगी ना, टाइम क्या है सेम। मैं मान रहा हूं जहां पे कोलिजन हुआ है नीचे से इतना टाइम, ऊपर से इतना टाइम, सेम टाइम। तो डिस्टेंस कितनी चली होगी? अगर ऊपर से 100 तो नीचे से 100 माइनस 100। बोलो
और मेरी बात को ध्यान से सुनना, कोलिजन यहां पर हुआ, ये यहां से चढ़ के गया है, लेकिन क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है, दिस इज द क्वेश्चन, कि बिल्डिंग के टॉप से या टावर के टॉप से कितना ऊपर गया। हाँ, वो यहां से गया है, हम तो यही निकाल पाएंगे, लेकिन उसके बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट करके हम आंसर निकालेंगे। इज दैट क्लियर, कि कितना ये नीचे गिरा या कितना ये ऊपर चला। तो क्वेश्चन की भूमिका को आप समझ पाए। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लूं, अगर कि ये कितना ऊपर चला, दो चीजें मुझे पता चल जाए, वेलोसिटी पता चल जाए, ये कितने से यहां चला है, फाइनल वेलोसिटी अपन क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता होगी, पता कैसे होगी, मोमेंटम कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D है, दोनों अलग अलग वेलोसिटी से आए, एम्बेड करें, यहां कॉमन वेलोसिटी जो होगी सिस्टम की, वही इसकी वेलोसिटी बन जाएगी हमारा काम सॉल्व करने के लिए। फिर वेलोसिटी हमें पता चल गई, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो आगे क्या करेंगे, आगे इक्वेशन थर्ड का यूज कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, फाइनल जीरो होने वाली है, वहां से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 रख देंगे और एस की वैल्यू वहां से निकाल लेंगे, दैट विल बी हाइट फ्रॉम द कोलिजन, और इसमें से इतना घटा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला बड़ा सवाल है कि टाइम कैसे निकालें, कोलिजन कब हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन को पहले हम 1D में भी सॉल्व कर चुके हैं, आप जाके चेक कर लो, 1D के लेक्चर चेकआउट करोगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। मैं मान लेता हूं ये टी टाइम में ऐसा हुआ और ये टी टाइम में ऐसा हुआ, दोनों का टाइम मैंने क्या मान लिया, सेम मान लिया। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि इसने कितना चला होगा टी टाइम में और इसने कितना चला होगा, ये चेक कर लेते पहले। तो मैं आपसे बोलने चला मोशन अलोंग वाई, सब कुछ वाई में काम हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं, बताओ कौन सी इक्वेशन का यूज करूं, दूसरी इक्वेशन का यूज करूंगा, एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या ए बाई टी स्क्वायर। आदत डालो ऐसा करने की, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मत लिखा करो। जिस डायरेक्शन में काम कर रहा ना, इस तरीके से आदत डालोगे तो काफी चीजें और अच्छे से सॉल्व समझ में आएंगी, सॉल्व होंगी और मजा आएगा। बोलो हाँ, अभी बताओ मैंने डिस्टेंस कितनी मान के रखी है, एक्स। बताओ ये इनिशियली जेंटली ड्रॉप किया गया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। मैं कह सकता हूं क्या, हाफ, एक की जगह क्या रख सकता हूं, जी, और टी की जगह टी स्क्वायर। इज दैट क्लियर। यहां पर मैं कुछ चीजों को सॉल्व कर सकता हूं, जी की वैल्यू को 10 रख दूं तो x विल बी 5t स्क्वायर, इक्वेशन 1 फॉर दिस ब्लॉक। ऊपर से बात कर रहा हूं, ये भी ध्यान रखना, ऊपर से निकाला ये x। बोलो फॉर, लिख दे रहा हूं यहां पे, फॉर वुडन ब्लॉक, फॉर वुडन ब्लॉक ये स्टोरी है। अगर मैं आपसे बोलूं फॉर बुलेट, बुलेट के लिए क्या होगा, देन वी कैन से एस वाई विल बी इक्वल टू हाफ, सॉरी u बाई टी माइनस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। माइनस क्यों, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, ग्रेविटी नीचे एंड वेलोसिटी ऊपर, तो दोनों सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन नहीं है, क्या है, डी एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है। तो x बाई के अलॉन्ग कितनी डिस्टेंस चली है, तो मैं कह सकता हूं कितना, 100 माइनस एक्स इज गोइंग टू बी, इनिशियल वेलोसिटी इज 100 गिवन टाइम इज अननोन फॉर अस, माइनस इसको रखूंगा जी। बोलो तो ये कितना हो जाएगा, 5t स्क्वायर। मेरे को दो दो चीजें पता चल गई। अब आपका काम है, आप चाहो तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, या x की वैल्यू 5t स्क्वायर मेरे को पहले से पता है, यहां पर रख लो, यहां से टाइम की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को। तो मैं रखने चला x इक्वल टू 5t स्क्वायर, पुट इन इक्वेशन 2। तो दिस इज विल बी, दिस इज गोइंग टू बी x माइनस 5t स्क्वायर इज गोइंग टू बी 100t माइनस 5t स्क्वायर। बोलो ये भी माइनस 5t, ये भी माइनस 5t स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहां से आप देखेंगे दिस इज गोइंग टू बी 100 इज इक्वल टू 100t एंड टाइम फॉर द कोलिजन इज 1 सेकेंड। बोलो मतलब 1 सेकेंड के बाद ये दोनों क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे, कोलिजन कर जाएंगे। क्लियर। अब कॉमन वेलोसिटी निकालनी है तो वो भी बहुत आसान है, हम मोमेंटम कंजर्वेशन का इस्तेमाल कर लेंगे। इसका मोमेंटम नीचे की तरफ, इसका मोमेंटम ऊपर की तरफ, कोलिजन के बाद मोमेंटम कहां, ऊपर की तरफ, कॉमन वेलोसिटी भी निकल आएगी। बोलो सॉल्व करें, नोट करो, 1 2 3 नोटेड। तो टाइम तो निकल आया। अब टाइम निकाल के आप चाहो तो पहले ये भी कर सकते हो कि 1 सेकेंड में ये कितना चला या 1 सेकेंड में ये कितना चला, ये भी कर सकते हैं, या फिर कॉमन वेलोसिटी निकाल सकते हैं पहले। तो चलो पहले कॉमन वेलोसिटी निकाल ले रहे हैं, यूज करने जा रहा है किसका, CMC कंबाइंड मोमेंटम कंजर्वेशन का। सो आई कैन से, थोड़ा सा मैं इस्तेमाल करूंगा मैथमेटिक्स को डायरेक्ट,
बताओ ये नीचे की तरफ है, तो मैंने मान लिया मास ऑफ द ब्लॉक इज 0.03 kg, जो कि क्वेश्चन में मुझे दिया है। बोलो क्लियर। और वेलोसिटी कितनी होगी, जब पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, नहीं तो यहां पे आप जीरो रख दोगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी बताओ, सोचने वाली बात है। क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं तुम समझ पाओगे? बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक प्रकार का क्या है, एक्सेलरेशन है। ये हर सेकंड किसी की वेलोसिटी को कितना बढ़ाएगा, 10। अगर घटाने पे आ जाए तो कितना घटाएगा, 10। बताओ जिसको सपोर्ट करेगा उसका 10 बढ़ा देगा, जिसका अपोज करेगा उसको 10 घटा देगा हर सेकंड में। तो बताओ ये जीरो से गिरना शुरू हुआ था, तो 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। आप चाहो तो इक्वेशंस का यूज करके ऐसे करके v इक्वल टू यू प्लस जी टी ऐसे भी निकाल सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, फाइनल हमें निकालनी है, g कितना है 10 और t कितना है 1। तो बताओ 10 मीटर पर सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी आ गई होगी मास इस पार्टिकल की या वुडन ब्लॉक की। ठीक है, ऐसी मैं आपसे इतना इससे पूछूं ये 100 से चलना शुरू करता है तो 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 90। 2 सेकंड के बाद 80, कब जीरो हो जाएगी, 10 सेकंड के बाद। बोलो चाहो तो आप ऐसे यूज करके निकाल लो, या मैं लिख दे रहा हूं कि जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है दैट इज गोइंग टू बी 90 मीटर पर सेकंड एंड द वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक इज 10 मीटर पर सेकंड आफ्टर दी 1 सेकंड। कितना डिस्टेंस इन लोगों ने चला ये भी हम इजीली पता कर सकते हैं 1 सेकंड में। बोलो चलो पहले अब हम क्या करते हैं, कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज कर रहा हूं, एक लाइन लिख देता हूं, मास ऑफ द ब्लॉक या मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इनटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बोलो इज इक्वल टू कंबाइंड, बोलो मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू कॉमन वेलोसिटी। यहां से निकाल लेंगे, सब कुछ हमें पता है। मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 0.03 kg and the velocity of the wooden block is 10 मीटर पर सेकंड आफ्टर 1 सेकंड। इज दैट क्लियर? हाँ, यहाँ पे कन्वेंशंस का यूज कर लेंगे, ये देख लेंगे। बोलो इसको मैंने माना है कि ये नीचे गिर रहा है ग्रेविटी की डायरेक्शन में, तो मैंने इसको प्लस में ले लिया। ठीक है, तो बताओ बुलेट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो इसको मैंने माइनस ले लिया। मोमेंटम कैसा हो जाएगा, माइनस क्यों, वेलोसिटी किसमें है, माइनस में। बोलो एक तो माइनस लेने ही कोई ना कोई सा। बोलो तो ये दे रखा है 0.02 kg और वेलोसिटी बुलेट की 1 सेकंड के बाद 90। दोनों के मास को जोड़ेंगे 0.03 0.02 इट इज गोइंग टू बी 0.05 एंड दी कॉमन वेलोसिटी। अब इसको यार सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद यहां से कॉमन वेलोसिटी निकालनी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही आसान है सॉल्व करना, और हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब आप बताओ, क्वेश्चन आ गया मेरा कि अब मेरे को पता चल गया ना, जब ये दोनों टकराए हैं, लेट्स से यहां से जब ये टकराए हैं ना बुलेट और ब्लॉक, अब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है कितना, 30 मीटर पर सेकेंड से। तो क्वेश्चन इज वेरी इजी। मैं आपसे पूछूं कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, आप सिंपली बता दो कि 3 सेकंड के बाद। क्यों? ग्रेविटी हर समय इसकी वैल्यू को 10 कम कर रहा है, क्योंकि ये उसके कहां चल रहा है, अपोजिट चल रहा है। तो 3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। और वेलोसिटी 0 होने से पहले हम ये कवर कर लें, ये कैलकुलेट कर लें कि इसने कितना रास्ता चला है टोटल, उसमें से ये घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो 3 सेकंड के बाद इसने कितना चला है ये निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान है। मैं हटा रहा हूं इसको। वेलोसिटी मेरे को पता चल चुकी है, कंबाइंड सिस्टम की 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। बोलो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, गलत ना हो क्वेश्चन, किस तरीके से हमें सॉल्व करना, बना बहुत ही जल्दी भी सॉल्व कर सकते थे। तो मैं बोल रहा हूं कि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब थोड़ा डायरेक्ट लगाता हूं। बोलो S मेरे को पता करना है, इनिशियल वेलोसिटी इज 30, टाइम कितना 3, मैंने पता कर लिया 3 सेकंड के बाद ये 0 होने वाला है। बोलो माइनस, प्लस की जगह माइनस, ये 5 और टाइम कितना है 3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे बोलो ये कितना हो गया, 30 तिहाई 90 माइनस 3 तिहाई 9 पंजे 45। आंसर इज 45 मीटर। बट रिमेंबर ऑप्शंस में मैंने एक काम मुझे और करना चाहिए था, 10-20 मीटर, और तीसरा ऑप्शन में 45 मीटर कर दे रहा हूं और चौथा ऑप्शन में 40 मीटर कर देता हूं।
जैसे निकालेंगे 45, ऑप्शन 45 दिया होगा क्वेश्चन में तो आप 45 न लगा दें, इसलिए मैं आपको सतर्कता के साथ बताता हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये यहां से चला है यहां तक और ये 45 मीटर है, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे नहीं पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि टॉप से बताइए कितना ऊपर चला, ये डिस्टेंस मेरे को बतानी है। बोलो, तो मैं क्या ये पता कर लूं कि 1 सेकंड में ये कितना चला? अरे ये जितना नीचे गया होगा उतना ही तो घटाना है, तो और कोई तरीका तो है नहीं पता करने का। यहां से यहां तक जाके पता करने से बेहतर है ये पता कर लेता हूं कि 1 सेकंड में कितना नीचे गया था। जितना ये नीचे गया था उतना ही मैं कम कर दूंगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो बोलो, मैं देखने चला, डिस्टेंस कवर्ड बाय वुडन ब्लॉक in 1 second. Is that clear? So S will be ut plus half gt square. बोलो, ये मेरे को कवर करना। इनिशियल वेलोसिटी 0 से गिरा था, ये कितना हो गया 5, t की वैल्यू कितनी 1, तो आंसर ये दोनों मेरे एक जैसे तो नहीं लगने लगे। तो यहां से मैंने कैलकुलेट कर लिया कि s कितना आ गया 5 मीटर। ये तो बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक की कितनी रख देंगे 0, 5, हाफ जी का मतलब कितना हो जाएगा 5t स्क्वायर, और टाइम कितना ले रखा है 1 सेकंड के नीचे ही कितना, अपने आप से नहीं ले रखा है ये 1 सेकंड, हमने कैलकुलेट कर रखा है कि 1 सेकंड के बाद क्या होगा, कोलिजन होगा। बोलो, तो 5 मीटर आ गई। बताओ, तो यहां से ध्यान से सुनना, अब मैं ये सब थोड़ा सा कैलकुलेशन हटा के आपको यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करता हूं। ये डिस्टेंस जब मैंने कैलकुलेट करी तो दिस डिस्टेंस इज 45, ये आप अपन ने निकाला, लेकिन इसमें ये रास्ता 5 मीटर का है, तो बताओ रिमेनिंग पार्ट कितना बचा 40 मीटर का, और हमारा ऑप्शन क्या सही हो गया डी। अगर हमसे क्वेश्चन ये नहीं कहता कि टॉप से कितना ऊपर गया होगा, देन आंसर विल बी 45, बट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग कि टॉप से कितना ऊपर गया है, देन आंसर विल बी 40 नॉट 45। इज दैट क्लियर? मजा आया जेईई मेंस का सवाल लगा करके? तो इस तरीके के सवाल भी कोलिजन में हमसे पूछे जा सकते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट को मर्ज करेंगे। आप देखेंगे पूरा 1D के साथ मर्ज किया हुआ कॉन्सेप्ट है और कोलिजन के बारे में पूछ रहा है। तो जेईई की या आईआईटी की यही खास बात होती है, वो कभी भी सिंगल टॉपिक से बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं उठाते। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही कठिन होता है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं। जैसे कोलिजन का कॉन्सेप्ट लगाया, उसके बाद 1D से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। क्लियर? ऐसे ही अब इतनी बात हो ही गई है तो एक 2D के क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। हाँ, मैं एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जिसमें कोलिजन होगा और कोलिजन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये भी जेईई मेंस 2019 का सवाल है, लेकिन फर्क इतना है 80% सॉल्व मैं करूंगा और 20% आप मेरे को आंसर में बताएंगे। इट मींस ये एक काइंड ऑफ होमवर्क, क्या कह सकते हैं, पार्शियली होमवर्क टाइप क्वेश्चन हो सकता है। आधा से ज्यादा मैं आपको कॉन्सेप्ट करके बता दूंगा, आंसर आप मेरे को बता देना कौन सा आ गया। ठीक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेक्टर का भी यूज करेंगे, 2D का भी यूज करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन का इट मींस यूज करने जा रहा है, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन का भी यूज करेंगे। बोलो, तो मैं क्वेश्चन को नोट कर देता हूं। दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन द जेईई मेंस 2010. Question is, a particle is projected with a speed u from the ground at an angle of pi by 3. It means 60 degree with respect to the horizontal axis. इसका मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है, 2D मोशन कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। When it has reached its maximum height, it collide completely inelastic. देखो 2D मोशन के साथ कोलिजन का कॉन्सेप्ट मर्ज कर दिया गया है। Completely inelastic with the another particle of the same mass is same, and the velocity is ui cap. इसका मतलब जो दूसरा पार्टिकल है उसके पास सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी किसमें है, एक्स डायरेक्शन में है, ui cap। 2D में नहीं है, दूसरे पार्टिकल की, पहले पार्टिकल की ऑफकोर्स 2D में है। तो पहले जो कह रहा है वो कर लेते हैं। ये यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, ठीक है, और ये कोलाइड कर रहा है एक दूसरे पार्टिकल के साथ जिसका मास सेम है, लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी है, ui कैप। मैंने मतलब मान के चलो कि मैंने यहां से एक पार्टिकल को फेंका और दोनों पार्टिकल क्या कर गए, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कर गए। एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि दोनों क्या कर गए, स्टिक कर गए, चिपक गए, और उसके बाद कॉमन वेलोसिटी से चलने लगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता था। बोलो, बट दिस इज द स्टोरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। बोलो, कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के ये क्या होता है, एच मैक्स, और एच मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हिसाब से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। चलो पहले देखते हैं क्या पूछता है, उसके बारे में बात करते हैं। बोल रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंबाइंड मास बिफोर रीच द ग्राउंड कितनी होगी। अब अगर आप इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सोचते रहोगे तो ये कभी सॉल्व नहीं होगा।
आप बहुत परेशान हो जाओगे। आप सिंपल सोचो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इट मींस डिस्टेंस सिंपली विल बी स्पीड इनटू टाइम। मतलब स्पीड निकाल लो और टाइम निकाल लो, कितना होगा उसकी वैल्यू यहां रख दो और यहां पर मेरे को पता चल जाएगा कि कितना होने वाला है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। आगे सुनना, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंबाइंड मास बिफोर रीच द ग्राउंड। ग्राउंड पे पहुंचने नहीं दे रहा, उससे पहले क्या डिस्कशन चल रहा है। अगर ये इन केस इस तरीके से ग्राउंड पे पहुंच गया होता तो हम लोग रेंज के कॉन्सेप्ट की भी बात कर सकते थे। इज दैट क्लियर कि मैं रेंज के कॉन्सेप्ट की बात क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि वो ग्राउंड पे पहुंचा नहीं है, और ग्राउंड पे पहुंच भी जाता तो भी हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज हम कर सकते हैं। अगर आपको आता है प्रोजेक्टाइल, आपने किसी का लेक्चर देख रखा है, दैट्स ओके। अगर आप अभी भी अनजान है प्रोजेक्टाइल से तो बिल्कुल भी रहने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन बाय द गैंग वॉर फिजिक्स। आपको 2 लेक्चर मिल जाएंगे। पहला लेक्चर कॉन्सेप्चुअल होगा जिसमें हमने सारे टाइप के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी है, और दूसरा लेक्चर कोई 2-2.5 घंटे के आसपास का होगा जिसमें मैंने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को कवर किया है प्रोजेक्टाइल मोशन से रिगार्डिंग। तो आप जाके देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि मैं ये टाइम कैसे निकालूंगा। बहुत आसान है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रोजेक्टाइल के अंदर। बताओ यहां से यहां तक जाने का टाइम कैसे निकाल सकते हैं? मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन। अब इसका फायदा होगा जो मैं बार बार आपको बोलता था ना, एक्स वाई करो एक्स वाई करो। टाइम निकालना है, लेट्स से ये कोई टाइम टी होगा, कुछ लोगों को याद भी हो सकता है ये टाइम 2 यू साइन थीटा अपॉन जी होगा। तो मैं आपको यहाँ पे इसके कंपोनेंट करके बताता हूं। यहाँ किसी को यू वेलोसिटी से फेंका गया है तो एक्स डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी यू कॉस थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी यू साइन थीटा। अभी मेरे से कोई ये क्वेश्चन मत पूछ लेना ये यू कॉस थीटा कैसे है और ये यू साइन थीटा कैसे है। हम लोग मैकेनिक्स में बहुत आगे आ चुके हैं, ये वेक्टर जैसी चीजों की प्रॉब्लम है। अगर आपको नहीं आता तो आप जाकर देख सकते हैं रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर बाय द गैंग वॉर फिजिक्स। आपको पता चल जाएगा कैसे कंपोनेंट हम लोग बनाते हैं, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर रहा हूं, बी वाई इक्वल टू यू वाई विल बी माइनस टाइम्स ऑफ ए बाई टी या जी टी ही लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ मैंने माइनस क्यों लिखा? वेलोसिटी ऊपर, ग्रेविटी नीचे। अरे यार ग्रेविटी तो हमेशा नीचे है, बोलो। हाँ, यहां पर पहुंचकर फाइनल टॉप पॉइंट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है ये 0 हो जाता है। अब आप मेरे से ये मत पूछना ये कैसे 0 हो जाता है, इसके बारे में प्रोजेक्टाइल में ही सीखने को मिलेगा। तो यहां से मेरे को समझ में आ गया कि 0 इज इक्वल टू यू को लिख सकता हूं क्या? यू साइन थीटा। यू वाई को क्या लिख सकता हूं? यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो यहां से टाइम की वैल्यू को मैं निकालूंगा तो यहां साइड में लिख दे रहा हूं मैं यू साइन थीटा अपॉन जी, इसलिए मैंने बताया कुछ लोग को डायरेक्ट भी याद रहता है। बोलो टाइम मेरे को पता चल गया। अब मेरे पास सिर्फ क्या बचा? स्पीड मेरे को निकालनी है, क्योंकि और भी आसान है स्पीड निकालना। दोनों जब यहां पर टकराए हैं तो इनकी स्पीड लेफ्ट से कोई बी स्पीड होगी। अरे दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द इनएलास्टिक कोलिजन इन 1D। नो, दिस इज द स्टोरी ऑफ 2D। सर आपने तो 1D पढ़ाया था, हम 1D ही की तरह ही पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारा जो काम है इस वेलोसिटी को निकालना है। इसके लिए हम सिंपली किसका यूज करेंगे? कंबाइंड मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा करके बता देता हूं, क्लियर है? आंसर तो आपने बताना है, ये तो होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है, लेकिन मैंने वादा किया था 80% में आपको हिंट देके जाऊंगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का इस्तेमाल करूंगा जस्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम की बात कर रहा हूं। बोलो तो इसका मोमेंटम, अब देखो ये जो पहला पार्टिकल फेंका गया है ऑफ कोर्स इसका मोमेंटम एक्स और वाई के अलोंग दोनों होगा, लेकिन ये वाला जो पार्टिकल है इसका मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ एक्स के अलोंग होगा, वाई के अलोंग इसका कोई भी मोमेंटम नहीं होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो बताओ अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने जाऊं एक्स के अलोंग तो मैं क्या बोलूंगा? बोलो इस वाले पार्टिकल का मास तो सेम है दोनों पार्टिकल का, और इसकी वेलोसिटी तो इसकी वेलोसिटी एक्स के अलोंग यू आई कैप। ये देखो क्वेश्चन में दे रखा है, कहां गया? क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। प्लस इस वाले पार्टिकल की जिसको जमीन से फेंका गया है
इसके अपन दो कंपोनेंट बनाएंगे और दो कंपोनेंट बनाने के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बताओ, ये एक्स के अलोंग हम लोग बात कर रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन की, वाई के अलोंग बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इस पार्टिकल के पास वाई के अलोंग कोई भी वेलोसिटी नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट डीलिंग द मोमेंटम कंजर्वेशन इन वाई। आप यूज भी कर सकते हैं, अगर आप निकाल सके तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो, तो इसके लिए मैं लिखना चाहूंगा क्या, मास तो सेम है और वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। एक चीज मुझे थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे ना, आप u की जगह इसको v कर लो, यहां पर भी u होगा, यहां पर भी u होगा, आप कॉमन लेके काट डालोगे इसको, ऐसा क्वेश्चन ने बोला नहीं है, दोनों सेम है, ठीक। और क्या ले लो, आई कैप। बोलो, क्लियर? एंड जब कोलिजन हुआ तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो हो गया। इसका मतलब इसके पास इस समय जो मोशन है, जो वेलोसिटी है, वो किसमें, प्योरली एक्स में। हम लोगों को ये बात पता भी है, जब हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, तो वर्टिकल पॉइंट पे आकर के पार्टिकल के बाद सिर्फ वेलोसिटी किसमें रह जाती है, एक्स में। वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। हाँ, उसके बाद जब यहां से फर्दर गिरना शुरू करता है तो एक्स और वाई वेलोसिटी दोनों में फिर से हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन वी आर डीलिंग एट द पॉइंट, एट द वर्टिकल पॉइंट, एट द टॉप पॉइंट। ओके, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि दोनों के मासेस को जोड़ के अपन क्या कर देंगे, 2m, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v। हाँ, ये भी किसके अलोंग है, x के, तो वेक्टर में ले रहे हैं तो सबको x के अलोंग रख लेंगे। बोलो, अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। यहां से पहले तो सब में i कैंसिल हो जाएगा, cos की वैल्यू भी डाल देता हूं। क्वेश्चन ने कहा ये π/3 है, इसका मतलब cos कितना है, 60 डिग्री है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, और सबको पता है। और यहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, v की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी, और b की वैल्यू यहां से निकल के आएगी, फिर यहां रख दूंगा। टाइम की वैल्यू मेरे को पहले से पता है, आप चाहो तो यहां पर भी जो एंगल है वो 60 डाल के और टाइम को √3/2 u/g लिख सकते हो। टाइम पता चल गया, स्पीड पता चल गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस पता चल जाएगी, और चार में से कोई एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। अब तो बिल्कुल खत्म सवाल है ना, v निकालना यहां से निकल आएगा, बस रखना है आपको। तो इतना तो आप करोगे ना, 2D का क्वेश्चन था इसलिए मैंने सोचा एक क्वेश्चन करा दूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, चारों में से आप मेरे को बता देना कौन सा आपका आया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए।